Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Welcome. It's a grade 10th social science history's first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. So you see the contents of the chapter: the French Revolution and the ideas of nation, the making of nationalism in Europe, the age of revolutions, visualizing the nation, the making of Germany and Italy. So in this chapter we will discuss about what were the conditions of the Europe, what was the political system in the Europe, especially with reference to the France, what were the conditions of the people, how people were living their lives. So without making any wastage of time, let's move forward. So the introduction of this chapter, here is a word nationalism. What does the nationalism means? Nationalism is an idea or the movement that promotes the interest of the particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. As you know that love nation means the love towards the nation, and we always try to promote the interest of the nations, and especially and gaining the maintaining, और इसकी gain भी करते और इसकी maintain भी करते इसकी sovereignty. Yeah, you know that we always try to make our nation very much proud. हम कोई भी जो भी इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता है या इसके ख़िलाफ़ बगावत करता है या कोई इस पर हमला करता है, वी ऑलवेज ट्राई टू डिफेंड आवर नेशन एंड वी ऑलवेज want to give out the last drop of our blood to save our nation from the foreign attack or the foreign conspiracies. ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हम पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस में लोग सफ़र कर रहे थे अंडर द वेरियस गवर्नमेंट्स एंड अंडर द वेरियस फॉरेन फोर्सेस, तो कैसे लोगों ने फिर उन चीज़ों को हैंडल किया और अल्टीमेटली दे केम एज वो कहते हैं विनर्स. एंड हाउ डज़ द नेशनलिज्म स्प्रेड इन देम. तो नेशनलिज्म कैसे स्प्रेड हो गया और कैसे लोग थ्रू नेशनलिज्म के बिकम यूनाइटेड. सो दिस इज़ द फर्स्ट पिक्चर इन योर टेक्स्ट बुक और ये फर्स्ट टॉपिक भी है. इट वॉज प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सोरियो, द विजन ऑफ द वर्ल्ड. So the Frederick Sorio gave us the vision of this world. He said that there should be a nation like an Ethiopian vision. तो what does the Ethiopian vision means? तो उसने कहा कुछ कोई ऐसी एक ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए, एक ऐसा नेशन बनना चाहिए कि जहाँ पे सब हम एकजुट रहे, जहाँ पे हम सब प्यार से रहे, जहाँ पे देयर शुड बी नो वॉर्स, देयर शुड बी नो कॉन्स्पिरेंसी, देयर शुड बी नो इंटरनल ये क्या कहते हैं राइवलरीज, देयर शुड बी मतलब इकोनॉमिक सिस्टम सब ठीक होना चाहिए. तो वो एक ऐसी मतलब ऐसी एक सोसाइटी चाहता था जो कभी पॉसिबल था ही नहीं. तो वो इसमें इस पिक्चर ने इसमें ये डिस्क्राइब किया. इफ़ यू सी वेरियस नेशंस आर कमिंग टुवर्ड्स द लिबर्टी. तो जो फ्रांस उस टाइम था, तो फ्रांस वाज गोइंग थ्रू द पॉलिटिकल टर्मोइल. तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था, इट वाज ऑल अबाउट द मोनार्की, किंग और क्वीन. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सारे फेडरो सोरियो कहता है कि जो ये सारे जो कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्री, दे आर कमिंग टुवर्ड्स द लिबर्टी. जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यहाँ पे, तो दे आर बिकमिंग फ्री. और जो वहाँ पे जो डेस्पोटिक रूल था, जो ऑटोक्रेट रूल था, तो वो ट्रम्पल हो रहा है. वो जो ऑटोक्रेट रूल जो है, इट इज़ ऑल मतलब डिक्लाइनिंग, ये ख़त्म हो रहा है. एंड देयर इज़ अ चार्टर इन हिज हैंड एंड इट इज़ गिविंग ऑल द नेशंस अ लिबर्टी फ्रॉम सच despotic rules. The first topic of this chapter is the French Revolution and the ideas of nation. The first expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये एक पहला एक्सप्रेशन था जिसकी वजह से नेशनलिज्म फ्रांस में आ गया. तो लोग अवेयर हो गए. एक मतलब ना वो क्या कहते हैं, एज यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th, the society at the during that time, during the French Revolution, the society was very much divided into 3 estates. As you know, the first estate was clergy, second was nobility, and third was the poor middle class, or you can say the poor peoples or peasants. The first two जो estates थे, they were enjoying the privileges of the society. But the third जो estate थी, it was depriving from the मतलब privileges, it was depriving from the rights, and they were the only estate who were paying the tax towards the government.
the situation was very much unfavorable for the third estate. So with a certain effect, as you have come to read in the 9th class, कि बहुत सारी situations हो गई जिनकी वजह से जो थर्ड एस्टेट था उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, किसके खिलाफ? लुइस हेनरी 16 के खिलाफ. And it was the transfer of monarchies into the sovereignty to its citizens. तो कैसे फ्रांस मोनार्की से फिर रिपब्लिक हो गया? तो पहले नेशनल असेंबली थी और उसके बाद रिपब्लिक. यू हैव स्टडीड इन द 9th क्लास. सो जो डेस्पोटिक एक तरह से रूल जो फ्रांस में था वो कैसे ख़त्म हो गया? तो इट वॉज द पीपल who want to shape their own destiny. So they claim that it is not a king who is shaping our destiny. It is the people who will shape their destiny themselves. जो लोग थे वो चाहते थे कि जो ये किंग है ये हम पे तो कुछ ये हम पे तो जुल्म ही कर रहा है, लेकिन वी हैव टू टेक एनी स्टेप टू मेक आवर जो डेस्टिनी है, टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट, to make our future bright through nationalism, to making the peoples aware about the various autocracies done by the king and his government at that time during Louis XVI. So we will try to learn in this topic how does the nationalism spread across the Europe at that time. सो देयर वे सर्टन फैक्टर्स जिनकी वजह से ये जो फ्रांस था ये नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहा था. जैसे पावर्स ट्रांसफ़र हो गए मोनार्क से कॉमन पीपल्स में. देयर वे ब्रॉड न्यू फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर बनाया गया फ्रांस में. जो फ्रांस वाज कंसिडर एज अ नेशनल लैंग्वेज. इससे पहले बहुत सारी डायलेक्ट्स थी, डिफरेंट वेरिएशंस की, डिफरेंट एथनिक्स के जो लोग रहते थे वहाँ पे. एक नया देयर वाज अ न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ऑथ्स वेयर टेकन. ठीक है, जो स्टेट जर्नल्स थे वो सिलेक्ट किए गए ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब वो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं स्टेट जर्नल जो थे, स्टेट जर्नल दे सिलेक्टेड, वो इन्होंने एक सिलेक्शन की किसकी? नेशनल असेंबली की. एज यू हैव रेड इन द 9th क्लास, इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी. अब नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली ये थी कि यहाँ पे जो भी अब रूल होगा फ्रांस में या किसी और जगह पे, तो वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो इट विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मोनार्क्स विल डोंट हैव इंटरफेयर इन दैट. और आपको पता है ड्यूरिंग द 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट देयर वेर वेरियस कस्टम्स एंड ड्यूटीज, वेट्स एंड मेजर्स वर डिफरेंट. सो इट वॉज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन. बहुत सारे द फ्रेंच आर्मी टेकिंग दीज आइडियाज वर टेकिंग टू द अदर किंगडम्स ऑल्सो. जो भी नियर बाई किंगडम्स थे लाइक ऑस्ट्रिया थे, हॉलैंड था, प्रूशिया था. These ideas of nationalism were taking to the other nations to make them aware to जो वहाँ के common peoples हैं उनको बताना कि जो ये monarchs है ये खाली injustice कर रहे हैं हमारे साथ. They are not वो हमारे से कोई development नहीं हो रही है, हमारी jobs नहीं बढ़ रहे हैं. There is a no sort of वो development as far as the third estate is concerned या मिडिल क्लास पीपल आर कंसर्न. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ी, कैसे ये मोनार्क सिस्टम ख़त्म हो गया और कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में डेस्पोटिक रूल से नजात मिली और कैसे हाउ डज दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड लिबर्टी. सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक. होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक विल कम सून. थैंक्स.